80 plus in CSAT every time. This is the video regarding my unbeatable formula for CSAT for UPSC Prelims 2025. If you are a beginner or if you have failed past prelims, this is the CSAT video you really need. 80 plus in CSAT every time. First of all, we will discuss syllabus. What is the syllabus? So please switch the video on 2x, and if you know the syllabus, please skip the video 10 seconds, 20 seconds, whatever you want. So this is the CSAT syllabus and this is the GS paper 1 syllabus. We will not look into this, but yes, of course this. Comprehension, almost 27 questions. Well, I will talk about this again. Interpersonal skills, logical reasoning. This is the real UPSC syllabus, okay? Logical reasoning and analytical ability, decision making and problem solving, general mental ability, basic numeracy, up to 10th class level. So they have clearly mentioned 10th class 10th. But the reality is quite different. Here is the exam pattern. What is the exam pattern? Maximum 200 marks. The paper is total 200 marks, 2 hours. It means 120 minutes you have to solve this paper, approximately 80 MCQs. It means multiple choice questions you have 80. As compared to GS, there are 100 questions, but here only 80. Each question carries here 2.5 marks, but in GS, only 2 marks. It means 0.5 extra. The negative marking is 1/3. क्वालिफाइंग मार्क्स, कितने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए इस 200 में से? ओनली 66.67. इट मीन्स इफ यू स्कोर्ड 67, you are done with CSAT. But qualifying this marks is really, really tough. Let's allow me to make it easy for you. So first, let's analyze 2024 CSAT, 2023 CSAT, 2022 CSAT, and 2021 CSAT. This is very necessary. Listen to me. From reasoning ability, there are 35 to 40 questions in 2024 prelims. And in reading comprehension, 22 to 24 questions. And numerical ability, 23 to 25. Total 80 questions. The paper was moderate. Okay. Now, 2023. This was the difficult paper in the whole CSAT history. So, take it in a light way. Relax. Reasoning ability 13 to 14 questions. Reading comprehension 27 questions. Numerical ability 39 to 40 questions. So this numerical ability is nothing but your maths wala part. Okay. So those who doesn't belong to the maths background, please just sit and relax. I am here for you. Difficult, leave it. Listen to me. UPSC prelims 202. Reasoning ability 21, reading comprehension 28, and again numerical ability 31. Moderate to difficult, easy to moderate. It means moderate to difficult paper आया था. UPSC prelims 2021 paper. Reasoning ability 21, reading comprehension 27, numerical ability 24, miscellaneous 8, total 80 question, moderately tough. So after looking all these things, there is a one thing common in each and everything. There are almost 21 to 25 questions average from reasoning, 25 to 27 questions from comprehension, and more or less 40 questions from here, 40 or 35 questions from maths. So what we have to do, what is the right strategy to qualifying CSAT? 80 plus in CSAT every time. This is the syllabus. See, क्वांटिटेटिव जो है आपका मैथ्स वाला पार्ट, मैथ्स वाले पार्ट से जो भी क्वेश्चन आते हैं, नंबर एंड इक्वेशन, फॉर्मेशन, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, क्लॉक एंड कैलेंडर, discount and profit loss, geometry, age. These are the topic of maths. Reasoning topics, statements, direction, coding, decoding, data arrangement, ranking, cubes, puzzle, data sufficiency, blood relation, syllogism, data interpretation, and other questions. And comprehension is nothing but 27 questions from here. This is the syllabus. आपने सब देख लिया, आपने सिलेबस देख लिया, समझ लिया. What is the reason behind 99% failures in CSAT? मुझे पता है आप लोगों को बहुत जल्दी है कि एक ऐसी मेडिसिन बता दो, एक ऐसा कोई पिल बता दो जिसको खाते ही हमारा सीसेट क्वालिफाई हो जाए. दैट इज नॉट पॉसिबल. जस्ट लिसन टू मी. एग्जाम के पैटर्न को समझिए और आपको लास्ट में वीडियो के लगेगा कि यार सीरियसली इज क्वालिफाइंग सीसेट इज क्वाइट इजी. यू जस्ट नीड अ रोड मैप. सो व्हाई 99% फेल सीसेट एवरी टाइम? Syllabus not completed. The first and foremost important thing, syllabus not completing.
लोगों को लगता है दिस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग पेपर, वी विल डू इट इन द लास्ट। ब्रो, दिस इज ओनली फॉर आईटीआईज, जो आईटीआई के बैकग्राउंड से आते हैं ना, उनके लिए है। दिस इज फॉर दोज जिनका मैथ्स ऑप्शनल है, और उनके लिए भी कई बार टफ हो जाता है अगर उनको टाइम मैनेजमेंट नहीं आता। दिस इज द बिगेस्ट रीजन बिहाइंड सी सेट फेलियर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज पी वाई क्यू। व्हाट अबाउट पी वाई क्यूज? पी वाई क्यू तो आप लोग ध्यान देते ही नहीं हो। आपको लोगों को लगता है कि पी वाई क्यूज रिपीट नहीं होते, बट लेट मी टेल यू अ थिंग, every year there are 80 questions if CSAT, then almost 20 plus questions repeat। numbers same नहीं होते, but questions almost same होते हैं, numbers का difference होता है, more or less वैसे ही question पूछे जाते हैं। नाउ, नो स्ट्रेटजी रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई स्ट्रेटजी आप लोग बनाते नहीं हो, सुनते नहीं हो, और फिर फेल हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि जीएस में इतनी मेहनत करने के बाद हमारा सीसेट नहीं हो रहा है। लिविंग मैथ सेक्शन और एनी अदर सेक्शन, कई लोग मैथ सेक्शन को छोड़ के चले जाते हैं इस भरोसे कि रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन से 27 आएंगे, कट ऑफ से बहुत ज्यादा नंबर आ जाएंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक रीजन है कि 20 में भी सब में दिमाग आपका चलेगा या नहीं चलेगा, और जो करोगे उसमें भी गलत होंगे। सेम यहाँ पे भी होता है। तो मैथ सेक्शन इज कंपलसरी। अब सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज द सॉल्यूशन? सी माय एडवाइस, लिसन टू मी। एडवाइस ये है, फ्रॉम 1 December स्टार्ट योर सी सेट प्रिपरेशन बाय हार्ट। अगर कोचिंग लेनी है तो कोचिंग ले लो, टेलीग्राम से पायरेटेड वीडियो देखनी है तो वहां से वीडियोस देख लो, यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ लो, बट स्टार्ट योर सी सेट प्रिपरेशन। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? दो चीजों से। सबसे पहला मैथ्स, ठीक है, और मैथ्स में सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका होगा नंबर सिस्टम। ऑलमोस्ट 20 और 15 क्वेश्चन अगर मैं कहूं तो आपके नंबर सिस्टम से आते हैं। इफ यू डन विद दिस टॉपिक, यू आर डन विद मैथ्स। तो सबसे पहला आपका काम है नंबर सिस्टम को कंप्लीट करना मैथ्स में। एंड द सेकंड टास्क इज कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन डेली आप 5 कॉम्प्रिहेंशन अभी से सॉल्व करेंगे डेली, 5 कॉम्प्रिहेंशन। बट देयर इज समथिंग यू शुड नो कि कॉम्प्रिहेंशन करें कहाँ से, एक करेक्ट स्ट्रेटजी क्या होगी, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए सिर्फ नॉलेज की नीड नहीं होती है। आपका माइंड सही चलना चाहिए, आपके पास ट्रिक्स होनी चाहिए, किन कब कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा गलत, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। सो द कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट इज अप टू मी। मैं आप लोगों का कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट कंप्लीट करवाऊंगा बाय हार्ट। जिस जैसे कि लास्ट ईयर जब मैंने करवाया तो ऑलमोस्ट जिन्होंने भी वो स्ट्रेटेजी देखी उन्होंने सी सेट क्वालिफाई किया, और इस पर्टिकुलर ईयर का जो कॉम्प्रिहेंशन उन्होंने किया, ऑलमोस्ट इफ देयर आर 25, उन्होंने 23 कॉम्प्रिहेंशन करेक्ट किए हैं। ऐसे ही मैं नहीं करता, कहता 90 प्लस एक्यूरेसी मैं आपको दिलवाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन में। सो लीव दिस पार्ट टू मी, आई विल डू दैट। कॉम्प्रिहेंशन मैं आपका कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन मैथ्स को आप अभी 1 December से स्टार्ट करिए और नंबर सिस्टम में लग जाइए। देखिए, अगर आप दिसंबर से प्रिपरेशन नहीं करते हो, वेट अ मिनट, अगर आप दिसंबर से सी सेट प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो जनवरी और फेब में, स्पेशली फेब में आपको बहुत सारे काम है। करंट अफेयर आ जाएगा आपका पीटी 365। इफ यू आर नॉट फॉलोइंग माई करंट अफेयर, देन ये आ जाएगा और आप लोगों को फोबिया हो जाएगा, ठीक है। वहां पे एक ये भी रहता है, बेसिक सब्जेक्ट को बार बार पढ़ो, मेंटोर भी आपके ही कहते हैं, आपको भी यही लगता है, और ये सच बात भी है। वहां पे आपको टेस्ट भी देने हैं, है ना, डेली टेस्ट होने हैं, उनका मॉक टेस्ट रिविजन करना है, फिर आपका बेसिक टेस्ट आता है, बेसिक नॉर्मल। अब सीसेट को अगर आप अभी कर दोगे और मैथ्स के अगर आप 3 to 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लोगे और कॉम्प्रिहेंशन आप दिसंबर में कंप्लीट कर लेते हो। देखो, कॉम्प्रिहेंशन एक वोलेटाइल चीज है, आपको उसे परमानेंट लेकर चलना पड़ेगा एंड तक, डेली 5 to 10, और फिर मार्च के बाद हम डेली 30 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे, जिससे कि कॉम्प्रिहेंशन में हमारी हाई एक्यूरेसी आई, मैथ्स के क्वेश्चन में हमारी हाई एक्यूरेसी आई। तो प्रोग्राम ये बनता है कि कॉम्प्रिहेंशन ऑलमोस्ट हम 23 ठीक करके आ जाएं, चाहे 25 है, 28 है, हमारे 23 तो होने ही चाहिए। रीजनिंग से हम ऑलमोस्ट 12 to 18 क्वेश्चंस ठीक करके आ जाएं, या फिर लेट्स से 15, और मैथ से हम ओनली 10 क्वेश्चंस भी ठीक करके आ जाएं, एंड वी विल क्वालिफाई सी सेट। सो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम चलता है सी सेट का। तो यूट्यूब पे मैं कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग वीडियो डालूंगा, जिसमें आप लोगों को पूरा कॉम्प्रिहेंशन डिटेल में समझाऊंगा, कैसे सॉल्व करना है, कहाँ से मटेरियल मिलेगा। मटेरियल तो सारा क्लियर विजन फॉर यूपीएससी टेलीग्राम पे चैनल पे अपलोड हो जाएगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। Now, the second advice from my side is focus on PYQs. Download the PYQ PDF from the Telegram channel and
practice daily from PYQs. No need to refer any mock test for now. For now, mock test is not important. Important is thing is PYQs, only PYQs. So focus on PYQs. Time management, we will talk about this again after January when you will complete some topics of maths, of course, maths or comprehension. Then I'll talk about this particular time management wala part. Now, what about this practice mock test? Practice mock test is after January and February, not now. Only focus on PYQs, and this is something I am continuously pressurizing you. So please focus on PYQs. Prepare CSET by heart. Do not take this in a light way that हो जाएगा, कभी नहीं होगा. ठीक है, प्लीज इसको आप बाय हार्ट प्रिपेयर करिए. देयर इज नो शॉर्टकट टू क्लियर सीसेट. यू हैव टू वर्क हार्ड वर्क करना पड़ेगा इफ यू रियली वांट टू क्वालिफाई सीसेट. और स्टार्टिंग हो रही है 1 दिसंबर से, तो आप लोग भी अपने टारगेट वाइज इसको कंप्लीट करिए. 21 डेज का चैलेंज लीजिए इससे पहले जो वीडियो आई है और पढ़ने में मन लगाइए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बट डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम एंड रीड दिस पीडीएफ डेली. थैंक यू.